کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اگر مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب نا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آ گیا ہوں, تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے چچا بھی ان کو یہی کہتے تھے. اللہ ہو. روٹین سے ان کو سنا تو پھر پتہ چلا یہ تو بہت زبردست صحیح راستے پہ چلا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے تقریباً سارے درباروں سے گھوم کر اور خوار ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. فیملی میں یا دوستوں میں؟ پورا فیملی عالم, تگڑے تگڑے عالم. جو میرے تایا جان ہے نا, وہ مسجد نبی میں تجوید و قرات کے استاد تھے. اور اس کے اندر مینوں بڑے بڑے ظلم بھی سہنے پے, اور یہاں تک کہ مینوں گھروں بھی نکالا گیا واجب القتل قرار دے کے. کیوں نہیں سننا؟ میں ان کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سب کو سنو, آپ کہتے ہو ان کو نہ. جب تک کوئی سنو گے نہیں تو آپ کو کس چیز کی سمجھ آئے گی؟ جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ بابوں کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کو پڑھیں, ان کی راہ ہدایت پہ چلیں, صراط المستقیم پہ چلیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد گھر والوں سے ڈسکس کیا. شروع میں تھوڑا بہت مانا, لیکن والد صاحب نے جب خود اس کے بارے میں ریسرچ کی ان کے بارے میں, تو ان کو تھوڑا اختلاف ہوا. انہوں نے میرے پہ فتوے لگانا شروع کر دیے اور کافی سختیاں کی. میں سن 2000 کیا تھی کہ آج تو 50 سال کے بعد بریلویت ختم ہو جائے گی. وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی شخصیت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ان پر نافذ کری ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا دربار تھا نا, دربار پہ دیا لگاؤ تو یہ منت پوری ہو جائے گی. تو لیکن میں نے ان کی ویڈیو دیکھ کے یہ سمجھا کہ دیے یا کسی اور چیز سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اتنا بلاولا شریف دربار ہے آگے شوف سرکار کا, ادھر بھی جاتے ہوتے تھے؟ نہیں, ان کو ہم مانتے ہیں نہیں شروع سے. ان کو آپ نہیں مانتے؟ یہ چور ہے, یہ چور ہے. یہ چور ہے. ان کو وہی لوگ مانتے ہیں جو پیسے والے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, انگلینڈ والے ہیں. اچھا, بس فیک ویڈیو بناتا ہے. یہ میرے ابو ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا چور ہے, 2 نمبر بندہ ہے. اچھا, جو سی بات ہے یہ قرآن و حدیث کو آگے رکھ کے کرتے ہیں, پختہ بات ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں بھی ایسا بندہ ہی چاہیے تھا, ایک پڑھا لکھا عالم چاہیے تھا, کیونکہ زیادہ تر جو ان سے عالم ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں. دیکھیے, ایک نیگیٹو تعارف انجینئر صاحب کا علماء کرواتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں گے جی انجینئر صاحب ٹھیک ہیں, ان کا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا, کیونکہ ان کا کھانا پینا چل ہی ان چیزوں پہ رہا ہے. گستاخ بھی ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. سر دیکھیے, یہ پاکستانی جون سے ہے نا, جو سا صحیح بندہ ہو نا اس کو غلط کہتے ہیں. اس کو غلط کہتے ہیں, اس کو غلط کہتے ہیں. انہوں نے خان کو بھی غلط کہا. اچھا, یہ ان کا بابوں کا عمران خان ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو تو غلط کہنا ہی کہنا ہے. پھر انہوں نے میں نے انہیں بولا, تم لوگ تو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بابے ہیں یہ ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. وہ تو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بابے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ صحیح بول رہا ہے نا. نام ایسے ہیں, اس کا نام علی عباس ہے. اچھا, تو یہ جو آپ کی فیملی ہے ان کو کیوں چھیڑے علی عباس ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل حدیث. اہل حدیث. جس مسجد میں پہلے جاتے تھے ادھر کے سارے بزرگ غور سے دیکھتے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. کیوں دیکھتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے, ہاتھ اوپر باندھتے تھے, اس کو کیا ہو گیا, یہ تو اس طرح تھا پہلے. یہ وہ مسجد کے کافی کام کرتے تھے. میں ایک فیصل آباد کے ایک بڑے مشہور دربار کی گدی نشینی میرے گھر میں ہے. میں ان کا پوتا ہوں. اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ہدایت سے نوازا ہے. اور میرے والد صاحب سے نوازا ہے یا آپ روکنے آئے تھے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیشن ختم ہو چکا ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. تو آئیے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मिर्ज़ा उमर। मिर्ज़ा उमर। मोहम्मद उमर। आप कादियानी हैं? नहीं मिर्ज़ा मैं है। मुगल फैमिली, जैसे अली भाई मिर्ज़ा हैं ऐसे मैं भी मिर्ज़ा हूँ। तो कहते हैं मतलब कादियानी अली भाई को तो मिर्ज़ा वो कहते हैं तो कादियानी। जिनको ज़ाहिर है कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, जिनके अपने बाबे मरेंगे तो वो इल्ज़ाम ही लगाएंगे ना कि यानी ऐसे इन्होंने लोगों की मात मारी भी है जी, कि मिर्ज़ा हालांकि- साथ आए तो कादियानी। मैं एक फैसलाबाद के एक बड़े मशहूर दरबार की गद्दी नशीनी मेरे घर में है, मैं उनका पोता हूँ। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह के हिदायत से नवाजा है। और मेरे वालिद ऐसे साहब नवाजा है या आप रोकने आए थे आज? नहीं, वो इन्वर्टेड कोमा में ये हम क्या गुमराह कर हो रहे थे? चुके हैं। अच्छा इन्वर्टेड कोमा में उनकी नज़र में हम गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन अल्लाह की तरफ से हिदायत है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब की जो औलाद है वो मतलब हम जितने बहन भाई भाई हैं, ठीक हैं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस फ़िरका परस्ती और दरबार परस्ती की लानत से बचाया माशाल्लाह पूरी फैमिली को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब को भी ये सबसे पहले हिदायत नसीब सबसे हुई या मेरे बाद- वालिद साहब भी मतलब थोड़ा अर्सा पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाए। मैं सबसे पहले घर में मतलब मैं अली भाई की वीडियोस देख देख के अच्छा गुमराह हुआ, फिर उसके ठीक बाद है। मैं अपनी फैमिली को गुमराह किया, अल्लाह फिर ये अकबर। मेरे एक दो दोस्त हैं उनको गुमराह किया हाँ इन्वर्टेड कोमास में। मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन का जो असल मकसद असल रूह थी हाँ। वो इन तक पहुंचाने की कोशिश भी की और समझने की आज कोशिश भी करते हैं। वालिद साहब को जब आप पहली दफ़ा गुमराह हुए इन्वर्टेड कामा पे तो वालिद साहब को जब जाके बताया तो क्या मेरे रिएक्शन वालिद था? साहब काफ़ी अरसा मतलब ना मुझसे नाराज़ भी अक्सर हो हाँ, जाते थे। ये सुनाए ना, ये भी और बताए लोगों को। होता ये था कि मैं अपना मौक़िफ़ कुरान हदीस से समझाता था, तो जैसे वो एक मतलब 50-60 साल से वो हाँ एक- वो हमारे बावजदाद ये सारा उसमें कुछ फ्रॉड चल था, रहे ये थे। क्या था? अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को गरीक रहमत करे, आमीन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आके वो अली भाई को सुनते भी थे अच्छा और माशाल्लाह ताला। मतलब मानते भी थी बातों को। माशाल्लाह। फिर उन बातों को वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करते थे अपनी निजी महफिलों में। हाँ, हाँ, बहुत हाँ। बड़े नात खां थे मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आप लोग भी दुआ करें उनके लिए। आमीन। अच्छा वो जो अब आपने अपने पूरे फैमिली से वो जो टक्कर ली तो जो बाकी फैमिली है जो गद्दी नशीन है वो बाकी सारा फैमिली- सिस्टम चला रहे हाँ, मैं हैं, उसकी बड़ी मदद जितने भी वो आपके लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनके नज़र में तो वो तो डाउटफुल हो गया ना, तो उनका क्या रिएक्शन है? आज भी ये है कि मेरे चाचा ताया के मतलब कज़न या उनमें से आलमोस्ट जो है ना वो मुझे यही समझते हैं कि ये गुमराह हो चुका हुआ है। हाँ और समटाइम मेरी पीठ पीछे मुझे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। जारी बात है जी, कहते और होंगे। अगर मतलब वो ये समझते हैं कि मैं मतलब ना अपने बाप दादा का दीन छोड़ के आ गया हूँ, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि अल्लाह के नबी के चचा भी इनको यही कहते थे। अल्लाह अकबर। और अगर मेरे मतलब कज़न वगैरह या उनकी फैमिलीज मेरी रिलेटिव्स ये कहते हैं तो कोई मसला नहीं मेरे लिए। तो असल बात तो ये है कि अल्लाह ताला मुझे हक के ऊपर मौत दे और आमीन, हम आमीन। सबको हक समझने की तौफीक दे आमीन। और उसके ऊपर अमल करने की भी अच्छा तौफीक आपके दे। इस अमल से जो आपने बगावत कर दी खानदान में जी। असर पड़ा वैसे उस उसके ऊपर गद्दी पे? बहुत असर पड़ा। अभी ये मेरे लेफ्ट राइट में ये मेरे भाई हैं। अच्छा। ठीक है, ये भी एक बड़े डोमिनेंट मतलब फैमिली से हैं और हाँ। फिरके से बिलोंग करते हैं। हाँ तो मैं हर साल मैं सऊदी अरब में होता हूँ जद्दा में। ठीक है। मैं जब भी आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई की वीडियोस की बरकत से ना कोई गुमराह कर देता हूँ मैं दोस्तों में। ठीक है। पहले एक बार आया था हाँ। 26 अक्टूबर को शायद या नवंबर को, जिस दिन वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाला ड्रामा हाँ लगा जी, था। हाँ जी। तो उस दिन में एक दो दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी। फिर इस साल मैं फिर आया हूँ तो फिर ये अपने दोस्तों के साथ, मेरा आने का इतना मकसद नहीं था, जैसे अली भाई बोलते हैं कि आप लोग ना आए दोबारा यहाँ पे, एक बार आना ही काफ़ी है, लेकिन दोस्तों को जी जी बिल्कुल मतलब दोस्तों। लेके आना, इसलिए वो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी समझ लें, ये इनका शौक था तो मैं लेके आया इनको। ठीक होगा। फर्स्ट टाइम आए थे आप आज? नहीं, आज मैं सेकंड टाइम आया हूँ। ठीक होगा। इंजीनियर साहब से आके आपकी मुलाकात है? इंजीनियर साहब से मेरी मुलाकात पहले है। अली भाई को मैंने 2017-18 में मैंने ख़त भी लिखा था, उन्होंने मुझे उस वक्त उसका जवाब भी दिया था। आज उस ख़त की आज भी फ़ोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है माशाल्लाह। और काफ़ी कुछ मतलब सुनता रहता हूँ। बहुत सारा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर मेरे लाइव मनाजरे भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। अच्छा ये भाई साथ आए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम सलाम। भैया? अली नवाज। अली नवाज भाई, फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम आए हो। जी। आपको भी दावत भाई ने दी? कैसे दावत नहीं, पहुंची? मैं सऊदी अरब में था तो फर्स्ट टाइम जब अली भाई की वीडियो देखी, फिर इनको पहले बुरा भला बोला, फिर जब रूटीन से इनको सुना तो फिर पता चला ये तो बहुत ज़बरदस्त सही रास्ते पे चला रहे हैं। तो और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे दरबारों से घूमकर अच्छा। और ख्वार होकर अल्लाह ताला ने हिदायत दी और अल्लाह अली भाई की वीडियो से मतलब सही रास्ते की पहचान होगी और अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हो गया हूँ।
और जो ये जो शिरक वाले और बिदअत वाले जितने भी काम हैं इनसे भी अल्लाह ताला ने जान छोड़वा दी है। माशाल्लाह। अच्छा भैया आप भी साथ आए हैं, आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अलियास। शेख साहब किधर से आए हैं आप भी? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? उमर भाई के साथ पहली मरतबा आया हूँ। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये लेके आए हैं? लेके आए मुझे। अपनी मर्जी से आए हैं? सुनते थे? नहीं मैं एक दो बार सुनाते थे। अच्छा। मैं उमर भाई के साथ आया हूँ। अच्छा। चले आप क्या कहते हैं, कैसे हाल में दी? बहुत अच्छे हाल में दी। अच्छा। शिरक जो सबसे बड़ा मसला शिरक का ही है ना। तो शिरक का इंशाल्लाह ताला उलमा कहते हैं ये गुस्ताख है, गुस्ताखियाँ करता है, कोई तहजीब भी है। आपने देखा आज कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? ठीक होगा, बहुत अच्छे है। सही होगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी सर, जज़ाकल्लाह। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भैया? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा जी। उसामा भैया किधर से आए हो? मैं सर नारोवाल से आया हूँ। नारोवाल से। खैरियत थी? सर तकरीबन मैं 3 साल से इंजीनियर साहब को सुन रहा हूँ। ठीक है। पहली दफ़ा मेरा वैसे स्टे था यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे तो चला जाना था कल, लेकिन मैंने कहा आए हैं तो फिर इतवार आ रही है तो इंजीनियर साहब को तो मिल के जाना है हमने। इनका तारुफ जब आपको फर्स्ट टाइम हुआ तो कैसा तारुफ हुआ? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? फिरका कौन सा था पहले? पहले हमारा फिरका जो है ना देवबंद, वो ठीक ठाक कट्टर देवबंद, कट्टर और सारे आलिम। अच्छा। ओए फैमिली में या दोस्तों में? या पूरा फैमिली आलिम, तगड़े आलिम। अच्छा। जो मेरे ताया जान है ना वो मस्जिद नबी में तजवीज़ो किरात के उस्ताद थे। अल्लाह अकबर। और पूरी फैमिली कोई 15 साल लगा के आलिम, औरतें मर्द सारे आलिम। अच्छा। फिर वहाँ पे निकलना इस तरह बड़ा अच्छा, मुश्किल। फिर इंजीनियर साहब का तारुफ होता है तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा तारुफ था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या था? अच्छा तारुफ था। वो इस तरह अच्छा था कि जो बड़े भाई हैं ना वो बड़े इंस्पायर थे इनसे, और उनको मैं अक्सर वीडियोस देखता, जब वो देख रहे होते ना तो मैं देखता था यार ये बंदा क्या है, बड़ा तगड़ा बोलता है। मैंने जब सर्च किया मैंने कहा यार बंदे में जान है भाई, पता लगता है कि बंदा हक बोल रहा है। फिर जब मेन चीज़ तो ये होती है रेफरेंस के साथ बोलते हैं। सही है, मेन चीज़ ये है। बिल्कुल ऐसा। और बाकी आलिम जो है कहानियाँ वगैरह यही चीज़ें चल रही थी। अब जब आज मैं आया हूँ ना यहाँ पे तो फैमिली में तो अभी भी वही कुछ चल रहा है। तो पहला मुझे डायलॉग बजा के वो गुस्ताख कुल चले हो। मैं क्या आज थानू भी गुस्ताख को ले जाने हैं, तुसी भी चेंज हो जाओगे। क्योंकि एक माशरे में जो बनाया हुआ है ना पॉइंट ऑफ व्यू इनका, वो इस तरह है कि भाई सुनना नहीं, गुस्ताख है, ऐसे ही इस तरह जी ये थोड़ा ईमान कमज़ोर कर दे। इधर तक हमारे कुछ बहुत बड़ा आलिम है हमारी फैमिली का, उसने इधर तक बोल दिया था ये काफर हो गए नहीं। अल्लाह, यहाँ तक बोल दिया था। मतलब ये है कि जो बंदा एक बार सुन लेता है ना इंजीनियर साहब को, हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, अगर सुन रहा है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुने कि मैंने कुछ लर्न करके जाना है। और अगर यही सोच के आना ना सी अपना फिरका नहीं थले लगन देना, वो साढ़े बाबे सीधे ही रहन, तो फिर वो कभी भी नहीं बंदा हिदायत पे आ सकता। अच्छा, जो उलमा हैं फैमिली में, आप उनसे क्वेश्चन ही करते कि भाई क्या डर है, सुनने दो ना, क्या डर है? देखिए अगर सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा कहा है। और ऐसा भी हुआ है कि मैं तो फिर अली भाई को जितना मैंने सुन लिया ना, मैं तो जूनियर जो बन गया हूँ अली मिर्ज़ा इस टाइम। तो मैं तो फिर इंजीनियर साहब के स्टाइल में ही, तो मैंने अक्सर की बोलती बंद करवाई है। एंड पे कहते हैं नहीं बहस करने का फ़ायदा नहीं, इसे इतना इल्म ही नहीं आया, बस इंजीनियर को सुन के आ गया। अभी घर वालों का क्या स्टेटस है? अभी घर वालों का तो मेरे तकरीबन 80% घर वाले अगेंस्ट है। नहीं वो अब अच्छा, साथ माशाल्लाह, हक कबूल कर लिया। हक कबूल कर लिया माशाल्लाह। उनको यहाँ तक पता है कि पहले तो मेरी तो वालदा खुद, उनको वालिद साहब भी वो जो है ना आलिम थे, तो पहले तो उन्हें यही था कि हम देवबंद है, अकीदे ये है। मेन चीज़ ये थी कि लोगों को ओरिजिनल नॉलेज से साइड पे किया हुआ था। वालिद साहब जो आलिम दीन थे, अब उनका क्या स्टेटस है? वो कारी थे, उनकी वफात हो गई है, लेकिन वो पहले भी वो इन चीज़ों से दूर, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वो इन चीज़ों से दूर थे। वो सीधा वो कुरान आदि इन पे ही रहते थे। सही हो गया। और जो हमारी फैमिली है वो तो फिर है ही कट्टर देवबंद थी। अच्छा, आज आए, आज एकेडमी देख ली, इंजीनियर साहब को लाइव सुन लिया, माहौल देख लिया, कैसा था प्रोग्राम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतना बेहतरीन था। एक तो ख्वाहिश भी थी मेरी, इतना बेहतरीन था कि जैसा मैंने सोचा था ना, मुझे ये भी होता था कि यार ऑफ द कैमरा पता नहीं क्या सीन चलता है, ये भी होता है ना यार, कटिंग होती है इस तरह, लेकिन फैबुलस, बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस।
اور نیکسٹ ایڈوائز کریں گے ہم دوستوں کو بھی جو دیکھتے ہیں. ہاں دیکھیے ایک نیگیٹو تعارف انجینئر صاحب کا علماء کرواتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں گے جی انجینئر صاحب ٹھیک ہیں, ان کا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا, کیونکہ ان کا کھانا پینا چل ہی ان چیزوں پہ رہا ہے. ایسے ہی ان کا کیا چل رہا ہے جی, وہ بزرگوں کی جھوٹی کرامتیں سنا کے تو عوام کو مائل کرتے ہیں, تو وہ سارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے انہوں نے. بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ رانا خالد, منڈی بہودین. اچھا جی رانا صاحب, کیسے آنا ہوا؟ جی میں اپنے بیٹے لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اس تو پہلے بھی میں آیا تھی. میرا بیٹا جو ہے انجینئر صاحب کا فین ہے اور میں بھی انہوں بہت سنتا ہوں. میں خود تاریخ کا طالب علم ہے. میں 1983 میٹرک کی ہے. اس کے بعد مینوں تاریخ اسلام کی اسٹڈی کا شوق ہے اور میں پہلے ایک اہل حدیث عالم کا شاگرد ہیں. کافی عرصہ کے اندر میں اہل حدیث رہا, پھر میں دیوبندی ہو گیا. 20 سال میں بریلوی رہا اور اس کے اندر مینوں بڑے بڑے ظلم بھی سہنے پے اور یہاں تک کہ مینوں گھروں بھی نکالا گیا واجب القتل قرار دے کے. وہ کیوں فرقہ چھوڑا؟ فرقے چھوڑے نا. اچھا اچھا اچھا. سن 2000 سے آ کے پھر میں مسلمان ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے میں بریلوی دیوبند ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ میرا بیٹا کھلوتا, اس کا نام عباس ہے. اس تو میرا بڑا بیٹا سی علی عباس, وہ فوت ہو گیا. جب اس کا نام علی عباس رکھا تو اس کی پیدائش کے صرف 2 گھنٹے بعد انہوں اسپتال لے کے جانا تھی. میری سگی بہن نے جواب دے دیا کہ نہیں لے کے جانا اٹھا کے. میں خود لے گیا, یعنی کہ ایک ترت کے بچے نوں میں خود لے گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک مثال اور یعنی نفرت کی وجہ سے نفرت, اور ایک مثال اور کہ میرا بیٹا جو فوت ہو گیا علی عباس, اس کی قبر ہمارے آبائی ہاتھ تو باہر نکال دی گئی. اللہ اکبر. آپ سے نفرت کی وجہ سے؟ نام ایسے ہیں, اس کا نام علی عباس ہے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ جو آپ کی فیملی ہے ان کو کیوں چھیڑے علی عباس ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل حدیث. اہل حدیث. دیوبند اہل حدیث. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جدوں وہ زندہ سی انہوں گھر تو نکالیا. جدوں مینوں نکالا اپنے بچوں سمیت واجب القتل قرار دے کے, ظاہر ہے وہ بھی نال نکلیا سی. اتنے ظالم تھے کہ واجب القتل کیا دیا گیا؟ سر بڑے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کو چونکہ اہل حدیث تھے, اہل حدیث تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایک مان توحید والا مسئلہ اور یہ سارے مسائل تو ان کے کافی حد تک کلیئر ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا مسئلہ تھا اپنا فرقہ چھوڑنے پہ؟ کیا ہوا تھا؟ اہل بیت کا ذکر, اہل بیت, ان کی مودت, بالکل ان کی مودت, یہ صرف ان کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے دل کے اندر پا دے خود بخود نہیں آتی. یہی تو وہ لعنت ہے اہل حدیثوں کے اندر جو پڑی ہوئی ہے, اہل بیت سے دوری. اور سر میں اس کے اوپر 1-2 کتاباں لکھ رہے گا تے میری کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی سے پورا کر جاؤں. ان کتابوں پر یا تو پابندی لگ جائے گی یا وہ وائرل ہو جائیں گی. فرسٹ ٹائم آیا آج؟ میں پہلے بھی آیا, میں اپنے بیٹے نے پہلی باری لے کے آیا. میرا بیٹا ہے. ہاں بچہ. ایسے آپ کیا نام ہے بھیا؟ میرا غلام مصطفیٰ عباس. غلام مصطفیٰ عباس. کیسا رہا آج ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. فرسٹ ٹائم دیکھا انجینئر صاحب کو؟ جی. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. چلے. اور سر جو آج انجینئر صاحب فرماندے ہیں کہ بریلوی فرقے اور یہ ختم ہو گئے, میں سن 2000 کیا تھی کہ آج تو 50 سال کے بعد بریلویت ختم ہو جائے گی. وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی شخصیت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ان پر نافذ کری ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل بالکل. وعلیکم السلام. کیا نام بھیا؟ محمد عتیق الرحمان. عتیق بھائی کدھر سے آیا؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ طاہر نام ہے جی. آپ کدھر سے ہیں؟ ہم اسلام آباد سے ہیں. جی. آپ کا نام؟ حسن محمد. حسن محمد. آپ بھی ساتھ اسلام آباد سے؟ اسلام آباد سے. اچھا جی عتیق بھائی کیسے آنا ہوا, کیسے تعارف ہوا انجینئر صاحب کا؟ آپ کا سابقہ فرقہ کیا تھا؟ پہلے تو ہم بریلوی تھے اور انجینئر صاحب کی ماشاءاللہ کچھ بیانات ہم نے سنے اور اللہ تعالیٰ نے بس ہدایت نصیب فرمائی اور ابھی جتنا سنتے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دی ہمیں. اچھا جی. ان کا تعارف جب پہلی دفعہ ہوا تو نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ نہیں صحیح تھا. اچھا جی جی شروع سے پہلی ویڈیو ان کی جب ان کو سننا شروع کیا تو کوئی اور دوست وغیرہ کوئی اپنے رشتہ دار انہوں نے مخالفت بھی کی ہوگی؟ جی جی جی. کیا کہتے تھے؟ دوست تو ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو نہ سنا کریں. کئی لوگ کئی تو ہیں جنہوں نے سنا بھی نہیں ہے اور ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو نہیں سننا. کیوں نہیں سننا؟ میں ان کو کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں سب کو سنو. آپ کہتے ہو
आप कहते हो इनको ना, जब तक कोई सुनोगे नहीं तो आपको किस चीज़ की समझ आएगी। तो बहरहाल ये अक़ीदे की ख़राबी है जो ये लोग इस तरह करते हैं कि जी एक चीज़ को सुनना ही नहीं और बिन देखे जो है ना जो फतवा लगा देते हैं कि जी ये काम नहीं करो। अच्छा, ये जो भाई आपके साथ आए हैं, इनको फिर आपने दावत आगे रखी? जी इनको मैंने रात को बताया, मैंने कहा गुमराह करा दिया जी नहीं ये अच्छे दोस्त है ये अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए आज? जी फर्स्ट टाइम आए। कैसा था एक्सपीरियंस आज का? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत खूबसूरत से। बड़ी ख्वाहिश थी कि यार इंजीनियर साहब को सामने देख लिया आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारा इंजीनियर साहब को ये गुजारिश है जी कि इमरान खान को दुआ करे, उसका मुश्किल आसान हो जाए। ठीक हो गए, वो सियासी मसला है, वो सियासी मसला तो अलग से है। आए जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अदन इशफाक। मोहम्मद अदन इशफाक। अदन इशफाक जी। अदन भाई किधर से आए हो? लाहौर से आए हैं। कौन सी जगह से? लाहौर फैज़बाग, शादबाग के पास। शादबाग। ठीक, क्या करने आए हो? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस देख के बहुत दिल खुश हुआ है। और तारुफ कब हुआ था इनका और कैसे हुआ था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 में मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैंने तब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं राह हिदायत पर हूँ। घर वालों का क्या फ़िरका था? घर वालों का फ़िरका वैसे तो हम मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम ही डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अब फादर साहब क्या कहते हैं हनफी बरेलवी। हाँ जी। लेकिन उनको भी कोशिश है कि वो भी राह हिदायत पे आ जाएं आहिस्ता आहिस्ता। उनको भी साथ साथ तबलीग मैं खुद भी देता रहता हूँ, अहादीस कुरान जितने भी सारे हैं। कैसे कट्टर बरेलवी है? कट्टर बरेलवी हैं या नॉर्मल? नॉर्मल। ठीक बस उनका क्या कहते हैं बाबों पे ज़रा ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा है, जिसको मैं कहता हूँ कि आप बाबों को छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर को पढ़ें, उनको उनकी राह हिदायत पे चलें, सिरातुल मुस्तकीम पे चलें, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। और मैं अपने दोस्तों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो ज़रूर आएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी आएंगे। अल्लाह पाक उनके लिए भी दुआ है कि वो जल्द ही जल्द आएँ। और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब लव यू सो मच। इनके आगे से कुरान गुजर जाए, मुस्लिम गुजर जाए, बुखारी गुजर जाए, इन्हें असर नहीं होगा क्योंकि ये बाबों के दीन के ऊपर हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर, बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और जब तू इनको पढ़ेगा तो तेरे अंदर से आवाज़ आएगी, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। आओ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो तारुफ कराने की जरूरत है, कराची। जी जरूरत। इनमें से बताए रंगी टाउन, गुलशन इकबाल कुरंगी किधर से हैं? मैं अख्तर कॉलोनी से। अख्तर कॉलोनी से जी। वो आगे पीछे कहीं लिखा होगा, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक हो गया, वो बाद में देख लीजिएगा। अच्छा, कैसे आना हुआ? सर गांव है मेरा अपना जेलम, मिर्ज़ा हमाद रशीद नाम है। अच्छा। और तकरीबन 4 साल से सुन रहे हैं। तो यही है कि कुछ टाइम पहले जो है ना अल्लाह ताला ने दिल में ऐसी कैफियत डाली कि दीन समझने का जो है ना शौक़ पैदा हुआ। फिर करते करते जो है वो एक वक्त था कि कहीं बैठे हुए थे महफिल में, बहस छिड़ गई, फिर किसी ने इनका हवाला दिया तो खुद सर्च किया, खुद देखा, उसके बाद घर वालों से डिस्कस किया। शुरू में थोड़ा बहुत माना, लेकिन वालिद साहब ने जब खुद इसके बारे में रिसर्च की इनके बारे में, तो उनको थोड़ा इख्तलाफ हुआ, उन्होंने मेरे पे फतवे लगाना शुरू कर दिए और काफ़ी सख्तियाँ की। तो मैं 2 साल पहले भी आया था, तो उस वक्त वालिद साहब ने कुछ कता ताल्लुकी भी की कि यार क्यों उतर गए थे। तो वालिद साहब का ताल्लुक कौन से फ़िरके से था? वालिद साहब वैसे तो देखिए ज़्यादा कि किसी फ़िरके की गिराई में नहीं, कटर तो नहीं थे, लेकिन बरेलवी। तो क्या मना कर रहे हैं वो? फिर इनको क्या समझते हैं जब एक बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं? जी जी। तो फिर क्यों मना कर रहे थे? देखें, अब जिस बंदे को खुद नहीं पता वो अपने दोस्त अहबाब से पूछेगा, रिश्तेदारों से पूछेगा। उन्होंने जिससे रिव्यूज़ लिए तो उन्होंने यही बोला कादियानी है। वो जिससे पूछते थे वो कौन से थे? बरेलवी? हाँ, वो अक्सर बरेलवी। अच्छा, अक्सरियत बरेलवी थी। तो वालिद साहब ने इस वजह से शुरू में सख्तियाँ की। अभी 6-7 महीने पहले इंतकाल हो गया वालिद साहब का, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। जी। तो फ़िलहाल ये कि अब खुद ही आए हैं और अभी इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारे वहाँ पे एक थे नज़ीर भाई, आप शायद जानते हो, उनकी शक्ल भी काफ़ी मिलती है इंजीनियर साहब से, तो वो मेरे दोस्त मिल गए। तो अक्सर मैं उनसे सीखता रहता। अगर वो वीडियो या नहीं देखने देते वालिद साहब, उनके पास जाके बैठ जाता, तो उनसे ही जो ना इल्म सीखते रहते। चले माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? आगे आ जाओ। शोएब। शोएब भाई किधर से आए हो? मैं लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? शादरा से। शादरा से। कैसे आना हुआ? मैं बस इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। अकेले आए हो? नहीं, मेरे साथ ये 2 भाई भी हैं और अच्छा। जो इनका भी ताल्लुक बरेलवी से ही था। मेरा भी था एक टाइम में, मैं
रहा हूँ काफ़ी। ठीक है। तकरीबन समझ ले कि 15-16 साल तक मैं इनमें ही रहा हूँ बरेलवी तबके में, यानी कि ना तो अचानक ही बस ये चेंजिंग आई है। तो रिसर्च की है काफ़ी। उसके बाद मैं यानी कि देवबंद फ़िरके में गया हूँ, उधर भी मुझे रिजल्ट नहीं, फिर अहले हदीस उधर से निकल गया मैं, यानी कि इनको छोटी सी उम्र में सारा कुछ घूम लिया ये घूम के। अच्छा, ये खुद से शौक पड़ा हुआ था दीन को सर्च करने का? मैं उसके बाद मैंने जब इधर गया हूँ ना देवबंद फ़िरके, उधर भी मुझे कुछ ना नहीं। जब बरेलवी छोड़ी तो क्यों छोड़ी? बस मुझे वो जो उनके ये मांगने वाला अल्लाह के अलावा ये कहानियाँ जो पे गए वहाँ पे क्या मसला आया? उधर मुझे बस कुछ है थे उनके जो कमज़ोरियाँ थी। जब मैं गया हूँ उधर ये जो इनका मरकज़ होता है उधर भी मुझे कुछ नज़र आई, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने अहले हदीसों में क्या नज़र आया? अहले हदीसों में इनमें थोड़ा सा है डिफरेंस है, लेकिन मुझे इनमें ज़्यादा यानी कि वो भी कुछ बातें ना ऐसी करते थे कि मुझे नहीं यानी कि अच्छी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इनमें ये है कि यार ये कहते हैं कि भाई दीन का असल जो काम है वो बता रहे हैं, इसलिए हम इनकी तरफ ज़्यादा आ गए। इंजीनियर साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यार रेफरेंस, वो बात करते हैं जो लिखी हुई है। अब अहले हदीस भी देते हैं, लेकिन इनका जो है अंदाज यानी कि बताने का यही नहीं कहते कि यार आप अहले हदीस हो मेरी बात ही सुनो, ये कहते हैं भाई जो अच्छा है आप उनको सुनो। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम आए तो पहली दफ़ा देखा माहौल यहाँ पे अकेडमी जो उलमा है वो आवाम को गुमराह करते हैं कि भाई ये गुस्ताख भी है और ये जनाब अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कैसे कैसे बहुत बातें। तो आपने देखा इस तरह का काम है, ये कुछ करता है ऐसे? नहीं ऐसे तो नहीं है ये, वो तो हमारी फैमिली में बहुत ऐसे यानी कि समझ ले सारे बरेलवी तबके ही है। ये जो भाई है ये सारे हम अचानक चेंज हुए, हमारी इनकी फैमिली में सारी तकरीबन ऐसे हैं जो बरेलवी हैं, लेकिन अब ये भी चेंज हो गए, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं मस्जिद के फ़िरका वगैरह जो बरेलवी से निकल रहे हैं। अब हमारे घर में भी यानी कि हमारी मेरी वालदा वो भी यानी कि लोग बातें करते हैं कि ये ऐसे मिर्ज़ाई फलाना ये ऐसे बातें जो कहते हैं, बस वो सूखी बातें ही होती हैं, सूखी बातें जो करते हैं, लेकिन हमने तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सभी इनको सुनते हैं। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आए जी, सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास जी, माशाल्लाह। अब्बास भाई थोड़ा सा गया है, किधर से आए हो? मैं बुरे वाला एक शहर उसके पास छोटा सा हमारा गांव है दोस्तान। बुरे वाला? जी जी। एक्सप्रेस के नाम से तो वकार यूनुस साहब का शहर है जी। अच्छा जी, ये बताएं कैसे आना हुआ? मैं सर इंजीनियर साहब की वीडियो देखता था पहले टिकटॉक पे छोटे क्लिप, वहाँ से मैंने इनकी वीडियो देखना शुरू की, तो वहाँ से मैं बहुत मुतासर होना इनकी वीडियो देखने। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने फिर काफ़ी बयान इनके भी देखे, मौलाना इसाक साहब के भी देखे और डॉक्टर इसरार के जो हदीस और रेफरेंस से बयान करते थे। तो फिर मैं इनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ। तो बड़े अरसे से मैं इनसे मिलना चाह रहा था ना, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो रहा था। तो अब मैं इनसे मिलकर यहाँ का आके माहौल देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फ़िरका कौन सा था पहले? मैं पहले बरेलवी ख़ानदान से था मेरा, क्योंकि मेरा अभी भी सारा ख़ानदान जो बरेलवी हैं, मेरे बड़े भाई हैं 2 वो भी बरेलवी हैं और वो बहुत इनके ना वो बरखिलाफ़ हैं कि ये नहीं तफसीली बात नहीं करते। कितने से सुनना शुरू किया इनको? मैंने तकरीबन 1.5 साल से 2 साल हो गए जिसके दरमियान। 1.5-2 साल में क्या आपने ऑब्ज़र्व किया बरेलवियत और मुस्लिम में क्या फ़र्क है? मुस्लिम बेहतर है। बरेलवियत में हम ये देखते थे कि जी आज फ़लाँ दरबार पे जा रहे हैं। जब मैं छोटा सा होता था तो मेरी वालदा कहती होती थी ना कि ये बेटा दिया फ़लाँ दरबार, हमारे गांव में एक छोटा सा दरबार था ना, इस दरबार पे दिया लगाओ तो ये मन्नत पूरी हो जाएगी। तो लेकिन मैंने इनकी वीडियो देख के ये समझा कि दिए या किसी और चीज़ से कुछ नहीं होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है। अच्छा, पहली दफ़ा आया इधर? जी, मैं फर्स्ट टाइम। कैसा था एक्सपीरियंस आज का? अच्छा एक्सपीरियंस, मुलाकात भी हुई इंजीनियर साहब से? इंजीनियर साहब से बहुत मुलाकात हुई, बहुत अच्छे तरीके से वो मिले और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फवाद अनवर। फवाद अनवर भाई किधर से आए हो? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। फैसलाबाद से? अकेले आए? नहीं, हम 4 लोग हैं, दोस्त आए हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ? इसी सिलसिले में काफ़ी देर हो गई थी, चक्कर लगाना था, बस आते आते टाइम निकाल के आ जाए। दोस्त है वो दुबई से आया, उसको भी लेके आए साथ, प्रोग्राम बनाया था, फिर आ गए हम चारों। तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर साहब का? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? फर्स्ट टाइम तो जब है था ना, लोगों से सुना था ये ऐसे ये मज़े कैसे क्या सुना था, बताओ ना क्या सुना था? बताते थे ना लोग जो है ना हमारे आसपास, ये ऐसे है, ये बहुत करता है, ये ठीक नहीं है बंदा, ये ऐसे है, ठीक है, करते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ बातें होती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, अच्छी लगती थी, वो कुछ नहीं भी लगती थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर यानी कि लाइन पे आ गए इस चीज़ पे। अच्छा, जब सुनना शुरू किया तो समझ आ गई बात की कि बातें ठीक हो रही हैं? हाँ जी। अच्छा, जब समझ आई तो जो दोस्त अब आप घर वाले रिश्तेदार उनका भी कोई रिएक्शन था? रिएक्शन है, नेगेटिव है उनका। अच्छा, क्या कहते थे? रफ़ा दयान के बारे में कहते हैं, क्यों करते हो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे। दलील भी देते होंगे, बताते होंगे, ये देखो आप ये इन्फॉर्मेशन है ना, क्या उनको बाकी बता सकूं कि ये आप ना करो, ऐसे है, ये ज़रा डिटेल बता सकूं,
ٹھیک ہے. مجھے وہ اتنا علم نہیں ہے, جتنا علم ہوگا تو اس حوالے سے میں ان کو بتاؤں گا, جواب بھی دوں گا. آپ بھائی ساتھ آئے ہو؟ جی ان کے ساتھ ہے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حذیفہ. حذیفہ. اچھا دوستوں بھائیوں کیا ہو؟ بھائیوں جیسے دوست ہیں. بھائیوں جیسے دوست ہیں. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا آپ دونوں میں سے پہلے کس کو ہوا, کس نے کس کو کروایا؟ مجھے ویسے وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں علی بھائی, انہوں نے تعارف کروایا تھا کہ یہ بندے جو سے ریلائبل ہیں. ان کی یہ جو سے نا تھوڑا آگے رہیں, کیمرے سے باہر کریں. جو سی بات ہے یہ قرآن و حدیث کو آگے رکھ کے کرتے ہیں, پختہ بات ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں بھی ایسا بندہ ہی چاہیے تھا, ایک پڑھا لکھا عالم چاہیے تھا. کیونکہ زیادہ تر جو ان سے عالم ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک پڑھے لکھے تھے, ان کی ایک علیحدہ پرسنالٹی ہے, یعنی کہ باڈی لینگویج بتاتی کہ یہ ہے دین دنیا دونوں جانتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اسی چیز میں بھی اٹریکٹ ہوا ان کی طرف. تو پہلے میں رفل دین نہیں کرتا تھا, لیکن الحمدللہ میں تقریباً 1 ماہ سے رفل دین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی باتوں سے آج میں آیا ہوں, یقین کریں بڑی خوشی ہوئی ہے. ان بڑا ایسے یہ لڑکا دبئی سے ہے, اسپیشل اس نے پلان بنایا کہ علی مرزا کو. پہلی دفعہ آئے ہو آج آپ؟ جی ہم پہلی مرتبہ. آج کیسا تھا ماحول اکیڈمی کا, دیکھا مزہ آیا کو نہیں آیا؟ کمال. اچھا جی اس کی کوئی یقین کریں کہ ہم کچھ تعریف ہی نہیں ہے اس کی. لیکن علماء تو فیصل آباد میں بھی کافی ایسے علماء ہیں جو وہ کہتے ہیں جی جناب یہ تو گستاخ بھی ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. دیکھیے یہ پاکستانی جون سے ہے نا, جو سا صحیح بندہ ہو نا اس کو غلط کہتے ہیں. اس کو غلط کہتے ہیں, اس کو غلط کہتے ہیں. انہوں نے خان کو بھی غلط کہا. اچھا یہ ان کا بابو کا عمران خان ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو تو غلط کہنا ہی کہنا ہے پھر انہوں نے, ٹھیک ہے نا. یہ جو رانگ نمبر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, انہوں نے بتے لیے جو ان سے اتنے بڑے گلے بنائے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے جب مرزا صاحب تو گلے دیتے تو بتے تو دیتے تو ہم ہی ہیں نا, ٹھیک, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے جب آ کے ان کی گلے توڑے ہیں تو انہوں نے تو بولنا ہے, پھر بولنا ہے پھر. چلیے بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی؟ بلال نام ہے. بلال, ماشاء اللہ. کدھر سے آئے ہو؟ کلر سے تھا. کلر سے تھا. شوف سرکار. شوف سرکار آگے میرا جو گاؤں ہے نا وہ بنال ہے. اچھا نہیں آپ ان کے مرید تو نہیں ہو؟ نہیں پہلے بہت زیادہ میں دربار کے اوپر جاتا تھا, اس طرح شرک ہو جاتا تھا. پھر توبہ کی ہے, انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے. اچھا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد باغیوں کو پھر نماز پڑھنی شروع کی, راست پہ لانے کا طریقہ. تو میرے ساتھ دوست تھے, وہ مجھے کہتے تھے تو گمراہ ہو جائے گا, تو ان کو دیکھ رہا ہے. پہلے میں دعوت اسلامی والے نہیں ہیں جو ان کے ساتھ مدنی منع تھے, میٹھے اسلامی بھائی. ہاں پاک شک پہنتے تھے. اچھا وہ اب مجھے کہنے لگے تو قدیانی ہو گیا, تو مرزئی ہو گیا, تمہارا استاد بھی مرزئی ہے. سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا کیوں کہتے تھے مرزئی استاد؟ کیا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بابو کو نہیں مانتا, یہ اس طرح کہتا ہے. کہ میں نے انہیں بولا تم لوگ تو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بابے ہیں یہ ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. وہ تو انسان نبی پاک وسلم کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بابے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ صحیح بول رہا ہے نا, تو یہ شرک کراتے ہیں. اچھا کلر سیدہ میں جب تھے تو یہ جو اتنا بلاولا شریف دربار ہے آگے شوف سرکار کا, ادھر بھی جاتے ہوتے تھے؟ نہیں ان کو ہم مانتے ہیں نہیں شروع سے. ان کو آپ نہیں مانتے؟ یہ چور ہے, یہ چور ہے. یہ چور ہے. ان کو وہی لوگ مانتے ہیں جو پیسے والے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, انگلینڈ والے ہیں. اچھا بس فیک ویڈیو بناتا ہے. یہ میرے ابو ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا چور ہے, 2 نمبر بندہ ہے. اچھا تو یہ بس. اچھا آج ادھر آئے ہو تو یہاں پہ کیسا ماحول تھا, یہاں کیا دیکھا؟ یہ تو نہیں چور ہے. 2 منٹ ادھر آئے ہیں. اچھا 2 منٹ. اچھا لیٹ آئے ہو. ہاں پہلے بھی 2 دفعہ آئے ہوں ادھر. ہاں تو ایکسپیرینس تو ہے نا. بہت اچھے بتے ہیں انجینئر صاحب. چلیں بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. آؤ جی آؤ نیکسٹ آگے آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام احمد. ماشاء اللہ. کدھر سے آئے ہو؟ میں لالا موسیٰ سے. لالا موسیٰ سے. جی ہاں جی. کیا کرنے آئے تھے, خیریت تھی؟ میں پہلی دفعہ آیا ہوں, انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, ان کو سنتا ہوں. تو کافی عرصے سے تھا کہ جانا ہے, دوستوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جائیں گے, لیکن کوئی مانتا ہی نہیں تھا. تو پھر آج میں نے کہا کہ میں آج ہو ہی ہوں. ہاں جی اکیلے ہی آ گئے. اچھا ان کو کب سے سننا شروع کیا؟ جب سننا شروع کیا تو کیا نیگیٹو تعارف ہوا, پازیٹیو کیا تھا؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں سنتے ہوئے. نیگیٹو پازیٹیو نہیں تھا ہوا تعارف. ٹک ٹاک پہ ویسے ایک کلپ آیا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا نام, انجینئر صاحب کا 25-30 سیکنڈ کی ویڈیو تھی, وہ سنی. اس کے بعد ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں, سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ غلط ہیں.
सारा कुछ रफ़ा दैन से नमाज शुरू कर ली। जिस मस्जिद में पहले जाते थे उधर के सारे बुजुर्ग गौर गौर से देखते कि ये इसको क्या हो गया। क्यों देखते थे? यानी रफ़ा दैन करते थे, हाथ ऊपर बांधते थे, इसको क्या हो गया, ये तो इस तरह था पहले। ये वो मस्जिद के काफ़ी काम करते थे, लेकिन वो फिर उस वजह से जो है जाते, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ी, गए ज़रूर। वो अली भाई वाली बात है कि जमात से थोड़ी देर पहले जमात पढ़ के घर वापस, बाकी नमाज घर आके पढ़ ली। घर वालों का क्या स्टेटस है? घर वालों सुनते का नहीं, घर वाले तो कोई नहीं सुनते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम सुनते हो ना सुना करो। ये वो घर वालों की तरफ से इतना कोई खास नहीं है। आज पहली दफ़ा आए? जी आज पहली दफ़ा आए। अकेले आए हो? जी अकेले आए। आज कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। वीडियोस में और लाइव देखने में बहुत फ़र्क है। लाइव बहुत ज़्यादा, वीडियोस में चले देखते हैं, लेकिन लाइव बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखने में बहुत एक कह लें लुत्फ़ है, मज़ा है। एक उन्होंने जो नारे लगाए उसकी लाइव और ही, वीडियोस में भी मज़ा आता है, लेकिन लाइव उसका और ही मज़ा। बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।